باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر ہمیں قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 14واں پارہ سورہ النحل کی آیت نمبر 69 سے آگے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ نحل آیت نمبر 69۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الى ارض العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر۔ پیچھے اللہ کی ذات نے مختلف چیزوں کی مثالیں دے کے اپنی توحید کا بیان فرمایا، اور اب اللہ کی ذات انسان کی اپنی مثال دے رہی۔ واللہ، اور اللہ ہی ہے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ وہ اللہ کی ذات ہے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا، ہر انسان کو پیدا کیا، ہر چیز اللہ نے پیدا فرمائی، لیکن یہاں انسان کو اپنی مثال سمجھانے کے لیے دی جا رہی ہے۔ ثم، پھر یتوفاکم، تم کو موت دے گا، پھر وہ روح قبض کرے گا، پھر موت دے گا۔ پیدا کرنے والے بھی اللہ کی ذات، اور پھر انسان کو موت دینے والے بھی اللہ کی ذات۔ ومنکم، اور تم میں سے یعنی انسانوں میں سے، میں یرد، جو لوٹ جاتے ہیں، پھیرے جاتے ہیں، اس طرف چلے جاتے ہیں۔ کدھر؟ الا، طرف، ارذل العمر، ناکارہ عمر کی طرف، بیکار عمر کی طرف، جس میں انسان کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لکی، تاکہ، لا یعلم، کہ نہ جانے، بعد علم شیئا، اس سے پہلے کہ وہ سب کچھ جانتا تھا۔ یعنی اللہ کی ذات انسان کو اس کی حیثیت، اس کی اوقات بتا رہی ہے کہ اے انسان، تو کچھ بھی نہیں تھا، میں نے تجھے پیدا کیا، اور پھر زندگی دی، اور پھر موت بھی میں ہی دوں گا، تو جو مرضی ہے کر لے، تو اپنی موت کو روک نہیں سکتا، میں تجھے وفات بھی ضرور دوں گا، تو مرے گا بھی ضرور۔ وَمِنْكُمْ، اور تم میں سے، انہی انسانوں میں سے کچھ انسانوں کی عمر اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ وہ اس عمر تک میں ان کو پہنچا دیتا ہوں کہ جس کو ناکارہ عمر کہتے ہیں، کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے، نہ ان کی ذہنی صلاحیتیں کام کرتی ہیں، نہ ان کی آنکھیں کام کرتی، نہ ان کا سننا کام کرتا ہے، کوئی چیز ان کی کام نہیں کرتی، اس عمر تک لوٹا دیتا ہوں، حتیٰ کہ یہاں تک ان کی یہ حالت ہو جاتی لا یعلم بعد علم شیئا، کہ وہ بڑے بڑے عالم، مفسر، مفکر ہوا کرتے تھے، لیکن جب ارذل عمر ہوتے ہیں تو سارا علم سب بھول جاتا ہے، اور وہ بچوں کی سی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں کتنی بڑی اللہ کی ذات نے مثال دی ہے کہ انسان کتنا تکبر کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کو توڑنا۔ جب انسان اپنے زور میں ہوتا ہے، جوانی میں ہوتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، تو وہ اللہ کے حکموں کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو اللہ کی ذات یہاں پہ یاد کروا رہی کہ اے انسان، تیرا پیدا کرنا وہ بھی میں نے کیا، تجھے موت بھی آئے گی، اور پھر تیرے سامنے ایسے انسان موجود ہیں کہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے شعلہ بیان، مفسر، عالم، فاضل، دنیا میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے، بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھنے والے، سب کے سب ساری نعمتیں ہونے کے باوجود جو ہے وہ اس عمر میں پہنچ گئے کہ جیسے ان پہ پاس کوئی علم نہیں، ایک چھوٹے بچے کی طرح ہو گئے۔ تو پھر انسان کس چیز پہ ناز کرتا ہے، کس چیز پہ تکبر کرتا ہے؟ یہ چیزیں تو انسان کے سامنے نظر آتی ہیں، اور خود انسان، ہر بندہ اگر غور کرے تو جتنی عمر کسی کی گزری ہے، 20 سال گزری ہے، 30 سال گزری ہے، یا 50 سال یا 100 سال گزری ہے، ایسے لگتا ہے جیسے چند لمحوں کی بات ہے۔ تو اگر انسان قرآن کے ساتھ جڑا رہے، قرآن کو سمجھتا رہے، تو یہ ہر وقت یاد دہانی ہوتی رہتی ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ تو کیا ہوگا، کس کس حال سے گزر کے پھر مجھے موت آنی ہے۔ اور پھر اللہ کی ذات، پیدائش انسان کیا ایک چھوٹا سا ایک بالشت کے برابر ہوتا ہے، پھر وہ اس دنیا میں اللہ نے جو اس کو نعمتیں دی ہیں اس کو کھاتا ہے، اس کے ساتھ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہی خوراک کھاتا ہے جس سے وہ کڑیل جوان ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے جی میں پہاڑ کو بھی گرا سکتا ہوں۔ وہی کھانے کھا رہا ہوتا ہے، وہی نعمتیں کھا رہا ہوتا ہے، وہی پھل کھا رہا ہوتا ہے، اور اسی میں پھر کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے۔
दुनिया में कोई ऐसी दवाई नहीं बनी, कोई ऐसी खुराक नहीं बनी कि इस कमज़ोरी को रोक सके, इस बुढ़ापे को रोक सके। ये इंसान की औकात है जो अल्लाह की ज़ात याद करवा रही है। तो फिर इंसान जो है वो तकब्बर करे और वो अल्लाह के हुक्मों को तोड़े, किस बात पे नाज कर सकता है? ये खूबसूरतियाँ, ये जवानियाँ, ये बिरादरियाँ, ये ताकतें, सब की सब जो है ज़िंदगी में ही लोग जान छुड़ाना शुरू कर देते हैं और सब कुछ भूल जाता है। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, अलीम, सारे इल्म वाला है, कदीर, हर चीज़ पे कुदरत रखने वाला है। इंसान का इल्म पे नाज करता है बड़ी बड़ी चीज़ों पे कि जी मैंने ये ईजाद कर दिया, वो ईजाद कर दिया, इतना बड़ा आलिम हो गया। असल इल्म अल्लाह के पास है। बंदे का इल्म बिल्कुल आर्जी और अल्लाह का दिया हुआ थोड़ा सा इल्म। और अल्लाह को ये कुदरत है कि वो एक जरासीम से 2 जरासीमों को मिला के इतना बड़ा 6 फुट का इंसान बना दे और फिर उसके बाद उसको बढ़ापा दे और बढ़ापा दे के इस उम्र तक लौटा दे जिसको नाकारा उम्र कहा जाता है। अल्लाह ताला को हर चीज़ पे कुदरत। वल्लाहु, और अल्लाह, फज़्ज़ला, बुजुर्गी दी, फजीलत दी, बाज़कुम अला बाज़, बाज़ को बाज़ पर। अल्लाह की ज़ात ने इस दुनिया में बाज़ इंसानों को बाज़ इंसानों पर फजीलत दी। फिर रिस्क में, रिस्क हम तो कहते हैं ना कि सिर्फ जो माल दौलत है उसको रिस्क कहते हैं, लेकिन मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह की जो नेमत इंसान को मिली है वो सारी की सारी अल्लाह का रिस्क। इंसान को अल्लाह ने अकल दी, अल्लाह का रिस्क है। सेहत दी, अल्लाह का रिस्क है। औलाद दी, अल्लाह का रिस्क है। बीवी बच्चे दिए, अल्लाह का रिस्क है। अकल दी, रिस्क है। ये सारी चीज़ें, हिकमत दी, दौलत दी, जो भी चीज़ें जितनी अल्लाह की सारी नेमतें हैं, तो ये अल्लाह का रिस्क है। तो अल्लाह की ज़ात फरमा रही है कि इस दुनिया में मैंने बाज़ इंसानों को बाज़ इंसानों पर रिस्क की फजीलत दी। आप देखते हैं बाज़ लोग बड़े ज़हीन होते हैं, अल्लाह ने उसको उनमें आगे कर दिया। बाज़ लोग बहुत अच्छी बात करते हैं, बड़ा बयान उनका अच्छा होता है, अल्लाह ने वो रिस्क उनको अता किया। कुछ दौलत में बहुत आगे होते हैं, कुछ इल्म में बहुत आगे होते हैं। तो ये सारी की सारी फजीलतें जो हैं, ये सारी की सारी जो ऊपर नीचे है, ये अल्लाह का दिया हुआ है। अल्लाह जिसको चाहता है। लेकिन एक चीज़ इंसान के ज़हन में हर वक्त पेश नज़र रहनी चाहिए, ख़ास तौर पे ईमान वालों के, कि ये जो अल्लाह ने जिसको ज़्यादा दिया हुआ है और जिसको कम दिया हुआ है, दोनों इम्तहान में, कि ज़्यादा वाला क्या करता है जब अल्लाह ने उसको ज़्यादा दिया, तो क्या इसी तरीके से उतनी ही गहराई से वो अल्लाह की ज़ात को पहचानता है और अल्लाह के हुक्मों को मानता है। और जिसको कम दिया है, कम अकल, क्या वो उस पर भी शुक्र करता है कि नहीं? अल्लाह का शुक्र करता है। तो हैं दोनों आजमाइशें कि अगर फजीलत है, ज़्यादा दी अल्लाह ने दिया हुआ है तब भी, और अगर कम दिया तब भी। तो ये अल्लाह की ज़ात है कि जिसने इंसानों में से बाज़ पे इस रिस्क में अपनी जो उसकी नेमतें हैं, जो हिकमतें हैं, वो उसने अल्लाह ने हर इंसान को वो अलग अलग दी हैं। फमल्लज़ीना, बस जो लोग फुज़्ज़िलू, जिनको फजीलत दी गई, वो लोग जिनको फजीलत दी गई, बिरादी, फेर देने वाले हैं, रिज़्क़िहुम, अपने उस रिज़्क़ को, अला पर, मा मलकत ऐमानुहुम, उन नौकरों पर, उन गुलामों पर जो उनके हाथ में है। अब अल्लाह की ज़ात ये बता के आगे इंसान के साथ सवाल कर रही है कि ए इंसान, अल्लाह की ज़ात ने जिसको फजीलत दी है, जिसको किसी भी रिस्क में, किसी भी अपनी नेमत में फजीलत दी है, तो क्या अपनी वो नेमत जो अल्लाह ने उसको दी है, जो रिस्क दिया है, क्या वो उसको बांट देता है, दे देता है उसको जो उसका मातहत है, जो उसका गुलाम है, जो उसका नौकर है? फ़हुम फ़ीही सवाउन, तो क्या वो बराबर हो जाएंगे? क्या वो अपनी दौलत को, अपनी अकल को, वो सारी चीज़ों को तकसीम करके अपने एक मातहत को, अपने नौकर को अपने बराबर कर लेता है? नहीं करता ना। अफ़बिनिअमतिल्लाहि यजहदून, तो फिर तुम क्यों तो बस क्या तुम अल्लाह की नेमत की नाशुक्री करते हो? ये नहीं, ये सारी चीज़ें इंसान ने अल्लाह ने इंसान को दी हैं। अब इंसान इस दौलत का, इस अकल का, इस नेमत का वारिस है। तो इंसान तो विरासत होते हुए ये समझता है कि ये चीज़ मेरी है, मैं उसमें 2.5% अल्लाह का तो दूंगा अगर अल्लाह का मानने वाले, बाकी मैं किसी को नहीं दूंगा। कौन इंसान है, अपने बहन भाइयों को भी इंसान ये नहीं कहता जी कि उसके पास नहीं है, मेरे पास अगर दौलत है, लाख रुपए है, तो मैं 50 उसको दे के 50 अपने पास बराबर कर दूं। कभी भी नहीं इंसान सोचता।
नौकर का या गुलामों का तो इंसान सोच भी नहीं सकता। तो अल्लाह की ज़ात फरमा रही है, तो अल्लाह के बारे में तुम्हारा गुमान है कि अल्लाह के खजानों में कोई और भी तसर्रुफ करता, आप उसको भी बराबर कर देते, अल्लाह का शरीक बना देते। अपनी दौलत तो देने के लिए तैयार नहीं हो, जो पीछे हमने कितनी दफा पढ़ा है, दर्जनों दफा, कि रज़क ना हम, रिज़क देते हैं हम उनको, रिज़क देते हैं हम उनको, अल्लाह की ज़ात देती है। तो वो तो कहते हैं ये हमारा अपना है, ये तो हम किसी को दे नहीं सकते जी, ये अल्लाह ने हमें दिया हुआ है। ना हम अपने बहन भाइयों को बराबरी पे लाना चाहते हैं, ना अपने साथ जो मातहत है उनको लाना चाहते हैं, और नाशुक्री इतनी करते हैं कि जिसने ये सारी नेमतें अता की हैं हम उसके साथ शरीक बना देते हैं कि जी ये औलाद देता है, ये रिस्क देता है, रिस्क की बंदिश हो जाती है जी। वो कितने कितने आप दीवारों में लिखा हुआ पढ़ते हैं, कौन सी रिस्क की बंदिश हो जाती है मेरे भाइयों? रिस्क तो अल्लाह देता है। अगर कोई इंसान किसी दूसरे बंदे के रिस्क को बंद कर सकता है तो नऊज बिल्ला, हमारे अल्फाज ये हैं कि हम ये कह रहे हैं कि वो खुदा से बड़ा हो गया, क्योंकि खुदा तो देता है ना सबको। हम कहते हैं जी फलां का रिस्क बंद है, उससे तवीज़ करो, उससे फलां करो, उसको ये करो। तो अल्लाह की ज़ात ये बता रही है कि ए अल्लाह के बंदो, ए इंसानों, ये समझो कि अपने इस थोड़े से रिस्क जो हमने आपको दिए है, तो आप लोगों को बराबरी नहीं कराते, तो मेरे बराबर तुम मखलूक में से शरीक ले आते हो कि जी फलां ये देगा, फलां वो देगा, फलां देगा। कुछ भी नहीं देगा। अल्लाह वादा शरीक है, उसी ने पैदा किया, उसी ने मौत दी है, सब कुछ देने वाला वही है। उसके खजानों में किसी और का तसर्रुफ नहीं है, वो अपने खजानों का खुद मालिक है, जैसे हम अपने इस थोड़ी सी नेमतों के दौलत के खुद मालिक होते हैं। और बात चीजें तो ऐसी मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जो इंसान चाहे भी तो दे नहीं सकता। अव्वल तो इंसान धेली भी किसी को नहीं दे सकता। अब किसी को इंसान को अल्लाह ने अकल दी हुई है, कैसे दूसरे को देगा? दे ही नहीं सकता। तो ये इंसान, अल्लाह ताला की ज़ात हमें इस मिसाल से तौहीद समझा रही है कि अपने लिए, जैसे पीछे कुफार मक्का को कहा गया था कि आप अल्लाह अपने लिए बेटियां नापसंद करते हो, एक पूरी तफसील के साथ कि क्या क्या तुम्हारी हालत होती है, और अल्लाह को कहते हो आपकी बेटियां हैं। तो इसी तरीके अल्लाह की ज़ात कह रही है कि तुम कैसी बातें करते हो कि अपने पास उस दिए हुए थोड़े से रिस्क को तुम किसी को देने के लिए तैयार नहीं, और मेरे खजानों में तुम उन बुतों को शरीक कर रहे हो, उन हस्तियों को शरीक कर रहे हो कि जी वो अल्लाह का रिस्क तकसीम कर रहा है, वो अल्लाह का रिस्क देगा, वो बेटा देगा, वो बेटी देगा, वो फलां देगा, वो देगा। कोई कुछ भी नहीं दे सकता। जिसने पैदा किया है, जो मौत देने वाला है, सिर्फ और सिर्फ वही दे सकता है और वही ले सकता है। अल्लाह हमें सही से समझ अता फरमाए। जो कुछ हमने सही से पढ़ा, अल्लाह हमारे ज़हनों में, दिलों में बिठा दे। जहाँ जहाँ पढ़ते हुए बोलते हमसे गलतियाँ होंगी, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, और उन गलत बातों को हमारे दिलों से, ज़हनों से अल्लाह की ज़ात निकाल दे।